Hello students. So I am going to teach you about aminoglycosides today. Aminoglycosides. Aminoglycosides are broad spectrum antibiotics. So now let's study about what they are exactly, what are the indications, what are the contraindications for their use, and also how we can remember. So what is a memory trick? So stay tuned till last. Let's get start this video. So aminoglycoside, the first question came into our mind is what they are. So aminoglycoside, aminoglycoside is composed of two words. One is amino, second is glycosides. So amino plus glycosides is aminoglycosides. Now, what is amino? What is glycoside? Amino. Amino is a protein group which is also known as NH. Then a sugar molecule which has a glycosidic bond. जो शुगर मॉलिक्यूल है जब उसके साथ एक ग्लाइकोसाइडिक जो लिंकेज बनी होगी और उसी के साथ जो फ्री अमीनो ग्रुप है वो बॉन्ड बना लेगा जिस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, राइट। सो ये मिलके जो है वो हमारे पास क्या बनता है, अमीनो ग्लाइकोसाइड। So in very simple form, we can say when amino group is joined with sugar molecule, this sugar molecule may have amino group and may not have amino group, right? So जो bond है वो कौन सा होगा दोनों के बीच में, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो बिकॉज ऑफ दिस ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ही हम इसको क्या कह रहे हैं, अमीनो ग्लाइकोसाइड्स। Clear? So basically if somebody asks you what are aminoglycosides, so they are amino group joined with sugar molecule with glycosidic bond. Now we will see about the general properties of aminoglycosides. So our first property is they are highly water soluble. They are not absorbed orally. So they are highly water soluble. ये water soluble रहते हैं. They are not absorbed orally. Orally जो है अगर इसको हम by oral route अगर administer करेंगे तो वो absorb नहीं होती हैं. इसलिए almost जो aminoglycosides हैं always they are given by IV और IM route. तो ये हमें याद रखना है, हमेशा ही कैसे दी जाएंगी, IM और IV रूट के साथ, बिकॉज दे आर नॉट अब्सॉर्ब्ड ओरली। ओरली ये अब्सॉर्ब ही नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस इज दे आर एक्सक्रीटेड अनचेंज्ड इन यूरिन। तो यूरिन में विदाउट एनी चेंज जो है यूरिन के थ्रू जो है एक्सक्रीशन होती है अमीनोग्लाइकोसाइड्स। नेक्स्ट इज बैक्टीरिसाइडल। सो दीज आर बैक्टीरिसाइडल, it means they will kill the bacteria. They are active against gram negative bacteria. So जो भी as we all know bacteria की classification we have already studied in our microbiology that two types होते हैं main, gram positive and gram negative bacteria. So जो aminoglycosides हैं ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो है वो इफेक्टिव होते हैं, राइट। एंड दे आर बैक्टीरिसाइडल। बैक्टीरिसाइडल का मतलब है दे विल किल द बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट इन दिस, दे आर प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर्स। व्हाट इट मींस कि वो ये क्या करेंगे, अमीनोग्लाइकोसाइड्स प्रोटीन फॉर्मेशन को नहीं होने देंगे। क्लियर? अब देखिए बैक्टीरिसाइडल है, वी आर सेइंग दैट दे विल किल द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को किल करेंगे कैसे, दे विल स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द बैक्टीरियल सेल वॉल। जो बैक्टीरिया का सेल वॉल है उसमें प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होने देते हैं, बिकॉज ऑफ दैट दे विल किल द बैक्टीरिया, हेंस दे आर बैक्टीरिसाइडल। नेक्स्ट, now many students find it very difficult to remember the names of the drug because there are many drugs which comes under one category or one classification, and it is really very difficult to remember all the drugs by their name. So what we are doing here, we are using one trick. With that we can recall the drug at any time. So let's see that.
So we don't need to remember names of all the drug, we just need to remember the suffix here. So the suffix for aminoglycoside is mycin or mycin. Mycin, MYCIN or MICIN. So either mycin लगा होगा at the end of the drug name, otherwise mycin लगा होगा MICIN, right? So by seeing the mycin at the end or mycin at the end, we can recognize this classification comes under aminoglycoside. So let's see the examples. So now we have basically two types of aminoglycosides, systemic aminoglycosides and topical aminoglycosides. Systemic means which we are giving by parenteral route. And what is parenteral route? That means we are using it either by IV route or IM route. Topical means on the surface, like in the term of ointment. ठीक है, बिकॉज ओरली तो ये अब्जॉर्ब होती नहीं है, सो ओरल रूट से बहुत ही रेयर है. इन 1 or 2 कंडीशंस वी कैन गिव, दैट आर एक्सेप्शनल कंडीशंस, जहां हम ओरल रूट यूज करते हैं, बट ओरली ये अब्जॉर्ब ही नहीं होती है. ठीक है, सो नाउ वी हैव टू कैटेगरीज, सिस्टमिक aminoglycosides and topical aminoglycosides. So now the examples. So in systemic examples, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जैसे हमने देखा होगा टीवी में भी ये जो मेडिकेशन है वो दी जाती है. टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, बेंकोमाइसिन, अमिकासिन. सो जैसे हर मेडिसिन के आप देखो एंड में लगा हुआ माइसिन 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 माइसिन. सो इसका मतलब ये क्या है, अमीनोग्लाइकोसाइड्स है. तो नेम यू कैन लाइक रिमेंबर, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टोब्रामाइसिन, जेंटामाइसिन, बेंकोमाइसिन, केनियामाइसिन. ठीक है, सो देयर आर मेनी मोर, बट आपको यहाँ पे अगर आपको याद है स्फिक्स, व्हाट द स्फिक्स वी आर यूजिंग हियर इन द अमीनोग्लाइकोसाइड्स, कौन सा स्फिक्स यूज होता है. so by seeing that suffix we can like recall it, we can recognize that the drug is aminoglycoside. now the topical aminoglycoside, टॉपिकल में आते हैं नियोमाइसिन एंड फ्रेमेसिटिन. दिस इज एन लाइक एक्सेप्शन आप बोल सकते हो, बट दिस आल्सो कम्स अंडर द अमीनोग्लाइकोसाइड. बट यहाँ पर भी देखेंगे तो माइसिन वर्ड इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द ड्रग नेम. सो नियोमाइसिन, clear hai? So these are the examples. So suffix here we have to remember mycin or mycin, like there is only the difference of y and I in the spellings. Next है mechanism of action. Now what the mechanism of action by which aminoglycosides work in our body? So aminoglycosides inhibit the protein synthesis in the bacterial cell wall, hence kill the bacteria. So as we already know this, as this is the property of aminoglycosides, that they are bactericidal and they are also protein synthesis inhibitor. So what they will do, they actually inhibit the protein synthesis. प्रोटीन की फॉर्मेशन नहीं होने देंगे इन द बैक्टीरियल सेल वॉल, एंड यू नो प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन, लाइक फॉर द सेल वॉल. अब अगर सेल वॉल ही नहीं प्रॉपर बन रही है, देयर आर नो प्रोटीन, रॉ मटेरियल इज नॉट देयर, इसका मतलब है अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा. सो अमीनोग्लाइकोसाइड जो है वो करेंगे क्या, दे विल किल द बैक्टीरियल सेल बाय इनहिबिटिंग देयर प्रोटीन फॉर्मेशन. नेक्स्ट, व्हाट आर द इंडिकेशंस? So now the indications. So what are the indications, or we can say the therapeutic uses of aminoglycosides? So aminoglycosides used to treat serious, resistance, life-threatening, gram-negative infections. So as we already know that ये जो aminoglycosides हैं, they are active against gram-negative infections और gram-negative bacteria. सो होगा क्या, जो क्रॉनिक इन्फेक्शंस होते हैं एंड विच आर लाइफ थ्रेटनिंग, जो लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस हैं एंड दैट इज बाय द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज, उन इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए दिए जाता है अमीनोग्लाइकोसाइड्स. तो बेसिकली वी कैन से दैट ओल्ड इन्फेक्शंस, अगर उसको किसी और मेडिसिन से फर्क नहीं पड़ रहा है ऐसा इन्फेक्शन, सो फॉर ट्रीटिंग दैट इन्फेक्शन वी आर यूजिंग
अमीनोग्लाइकोसाइड्स। जो एक्यूट इन्फेक्शंस होते हैं, सडन अराइज हो रहे हैं, उनके लिए हम यूज नहीं करते हैं। सो फॉर एग्जांपल, now what are the conditions in which we are using aminoglycosides? So first is TB, peritonitis, septic shock, infected burns, fulminating pyelonephritis, septicemia, pneumonia, meningitis. अब ये जितनी भी कंडीशंस हैं वो सडन नहीं हुई हैं, दे टुक टाइम टू डेवलप दिस दिस काइंड ऑफ डिजीज कंडीशंस, राइट। सो ये बेसिकली ओल्ड इन्फेक्शंस हैं, तो हमें याद रखना ओल्ड इन्फेक्शंस में वी आर यूजिंग अमीनोग्लाइकोसाइड्स। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज so one important point which we need to remember here, important point which we need to remember about the aminoglycosides, that they are used before abdominal surgery to reduce normal flora in the bowel. So जब भी abdominal surgery होती है, abdominal surgery के टाइम पर क्या करते हैं, नॉर्मल फ्लोरा। अब हमें पता है हमारे वॉल में नॉर्मल फ्लोरा है, गट में नॉर्मल फ्लोरा, मतलब सम बैक्टीरियाज आर देयर जो नॉर्मल फ्लोरा में आते हैं, फॉर एग्जांपल ई कोलाई। सो ऐसे फ्लोरा को कम करने के लिए, टू इन ऑर्डर टू रिड्यूस दिस नॉर्मल फ्लोरा, क्या करते हैं, अमीनोग्लाइकोसाइड्स दिए जाते हैं बिफोर द सर्जरी। ठीक है, क्योंकि इन्होंने अब्सॉर्ब तो होना नहीं है, ठीक है, तो ये एज इट इज ही क्या होगा, यूरिन के थ्रू पास हो जाएंगे, बट दे विल रिड्यूस द नॉर्मल फ्लोरा। नेक्स्ट, what are the contraindications for this? So what are the contraindications for this? Now the first point is hypersensitivity. If there is any allergic reaction or patient is allergic to the aminoglycosides, नहीं दी जाएगी ड्रग। pre-existing hearing loss, बिकॉज जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं दे आर ऑटोटॉक्सिक। ऑटोटॉक्सिक मतलब दे आर हार्मफुल फॉर द ईयर्स। सो इफ पेशेंट इज ऑलरेडी हैविंग हेयरिंग लॉस और उसको अमीनोग्लाइकोसाइड दे देंगे तो ये कंडीशन और भी ज्यादा वर्स हो जाएगी, राइट। सो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। नेक्स्ट इज मैस्थीनिया ग्रेविस, ये हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, तो एज दिस इज ऑल्सो न्यूरोटॉक्सिक ड्रग, सो वी कैन नॉट गिव इन द Myasthenia gravis, contraindicated है। Then Parkinsonism, so again Parkinsonism भी हमारा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। सो जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स हैं वो क्या करते हैं, न्यूरोलॉजिकल ब्लॉकेड क्रिएट कर देते हैं, दैट्स व्हाई दे आर नॉट रिकमेंडेड हियर। Pregnancy and lactation, so they are highly contraindicated in pregnancy and lactation because they can create an teratogenic effect on the fetus, so that's why they are contraindicated in pregnancy and lactation. So next we see about the adverse reaction or side effect, we can say, along with the adverse reaction. So what are they? So first is nausea, vomiting. So generally we can see the जो GI ये हैं GI साइड इफेक्ट हैं या फिर एडवर्स रिएक्शंस है, दे आर वेरी कॉमन। सो समटाइम्स वो अपने आप ही सबसाइड हो जाते हैं आफ्टर सम टाइम, राइट। सो नोजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया हो सकता है, रैशेस हो सकते हैं, आउट्रिक एरिया हो सकता है। The important adverse reaction which need to like report, immediately report करना पड़ेगा to the SCP, that is health care provider और physician. So like nephrotoxicity, ये हमारी किडनी के लिए harmful हैं, they are autotoxic, autotoxicity create करते हैं because they are harmful for our ears as well. neurotoxicity create करते हैं because वो हमारे neurons के लिए भी harmful है, ठीक है। सो ये जो बेसिक ये इनके स्पेसिफिक हम बोल सकते हैं एडवर्स इफेक्ट हैं, दैट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी एंड न्यूरोटॉक्सिसिटी। नेक्स्ट है नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो एज अ नर्स व्हाट इज योर रोल इफ यू आर एडमिनिस्ट्रिंग aminoglycosides to any patient, right? So let's see that. So now first point,
Before administering drug, evaluate result of culture and sensitivity test. सो वेन एवर एडमिनिस्ट्रिंग अमीनोग्लाइकोसाइड्स और कोई भी एंटीबायोटिक जब भी हम दे रहे हैं पेशेंट को और पेशेंट का कोई टेस्ट होना है लाइक कल्चर एंड सेंसिटिविटी कोई टेस्ट होना है तो वो हम ड्रग देने से पहले ही कर लेते हैं, राइट? अगर मान लो आपने ड्रग एडमिनिस्टर कर दिया एंड आफ्टर दैट यू आर टेकिंग सैंपल फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिविटी तो हमें बैक्टीरिया का पता नहीं चल पाएगा, वी लाइक जो भी लैब में बैक्टीरिया को रिकॉग्नाइज करना डिफिकल्ट हो जाएगा, राइट? सो हो सकता है वो डिस्ट्रॉय भी होना स्टार्ट हो जाए। तो क्या करते हैं बिफोर एडमिनिस्ट्रिंग द ड्रग, कोई भी एंटीबायोटिक है, बिफोर गिविंग दैट एंटीबायोटिक क्या करना है, वी हैव टू इवेलुएट द रिजल्ट ऑफ कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट, टेक ड्रग एट प्रिस्क्राइब्ड टाइम इंटरवल्स। तो जो भी डॉक्टर ने टाइम प्रिस्क्राइब किया है उस टाइम पर ही ड्रग लेनी होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट, always report serious adverse reactions. So as we have previously discussed that कि यहाँ पर क्या है, तीन मेन जो इसके एडवर्स रिएक्शन हैं जो हमें रिपोर्ट करने की जरूरत है, दैट इज नेफ्रोटॉक्सिसिटी, ऑटोटॉक्सिसिटी, न्यूरोटॉक्सिसिटी। तो अगर इनसे रिलेटेड कोई साइन अराइज हो रहा है तो वो हमें इमीडिएटली जो है रिपोर्ट करना है। सो ऑलवेज रिपोर्ट सीरियस एडवर्स रिएक्शंस। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। तो वाइटल साइंस भी हमें क्या करना होता है, बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मेडिकेशन वी हैव टू मॉनिटर, वी हैव टू चेक द वाइटल साइंस एंड रेस्पिरेटरी स्टेटस। अब रेस्पिरेटरी स्टेटस क्यों, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिक है, न्यूरॉन्स को इफेक्ट कर रहा है, तो ये हमारे डायफ्राम में जो उसको भी इफेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी रेट डिक्रीज हो सकता है, राइट? तो क्या करना है, रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करना है, दिस इज आवर प्रायोरिटी हियर। Next, monitor signs of phototoxicity. So as we are saying that जो aminoglycosides हैं वो ऑटोटॉक्सिक हैं। अब जब ये है ही ऑटोटॉक्सिक हैं, ईयर्स के लिए क्या है, हार्मफुल हैं। सो वी नीड टू वॉच द साइन ऑफ द हेयरिंग लॉस। अगर पेशेंट को मान लीजिए टिनाइटिस हो रहा है, टिनाइटिस इज रिंगिंग और बजिंग साउंड इन द ईयर्स, अगर पेशेंट को वो घंटियों की आवाज ही कान में सुनाई दे रही है बार बार, या फिर उसको सुनने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, so means this is the sign of ototoxicity and we have to report this sign to the doctor. Next, assess RFT. RFT मतलब renal function test and what it is, renal function test हम चेक करते हैं to to find the functioning of the kidneys. ये किडनी के लिए किया जाता है बेसिकली, जिसमें हम क्रेटिनिन, यूरिया, यूरिक एसिड, इनकी जो वो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, BUN वगैरह की। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात करते हैं क्रेटिनिन की। अगर क्रेटिनिन का लेवल मोर देन 1.3 आ रहा है तो हम इस ड्रग को नहीं देते हैं, क्योंकि क्रेटिनिन जो है दिस इज इंडिकेटर फॉर रीनल फेलियर। अब रीनल फेलियर जो है, अगर पेशेंट को ऑलरेडी रीनल मतलब किडनी में कोई दिक्कत आ रही है तो ये अगर ड्रग भी दे देंगे तो ये तो ऑलरेडी क्या है, नेफ्रोटॉक्सिक, मतलब ये किडनीज के लिए भी हार्मफुल है। सो दैट्स व्हाई वी नीड टू असेस द RFT। ठीक है, जिससे हमें पता चल जाएगा कि क्रेटिनिन का लेवल क्या है, उसकी यूरिन आउटपुट कितनी है। अगर यूरिन आउटपुट लेस देन 30 ml पर आवर हो रही है, सो वी नीड टू रिपोर्ट दैट। फाइन। अब इम्पोर्टेंट थिंग विच वी नीड टू रिमेम्बर विद दिस, दैट इज 8। 8 हमें बेसिकली 8C आप याद रख लो या 8 आप याद रख लो। सो क्या है, वट इट मीन्स, डैमेज 8th क्रेनियल नर्व, जिसको बोलते हैं वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। तो ये क्या करती है, 8th क्रेनियल नर्व को डैमेज कर देती है। प्लस ऑलवेज गिवन 8 आवरली। जैसे मान लीजिए अगर इसकी फर्स्ट डोज हमने मॉर्निंग 8 o'clock दी है तो फिर हमें 8 आवर का गैप होना चाहिए टिल द नेक्स्ट डोज। सो फर्स्ट डोज और सेकेंड डोज के बीच में 8 आवर, 8 घंटे का गैप होना चाहिए। तो इसलिए 8 आप इसके साथ याद रख सकते हो। दिस इज द लाइक वेरी क्रूशियल पॉइंट हियर, क्योंकि 8th क्रेनियल तभी तो क्या है, ऑटोटॉक्सिसिटी है और ये ईयर के लिए हार्मफुल है। I hope you understood today's topic, as it was very important to know for our pharma examination and for NCLEX RN as well. So you can share this video, you can comment on this video, and thank you for watching.